بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کریم متحری چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، وفاق المدارس عربیہ پاکستان کے اسناد کے گم شدہ کو دوبارہ منگوانے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کی کوئی بھی سند جو آپ نے وفاق المدارس عربیہ پاکستان سے حاصل کی ہوئی ہے اور وہ آپ کی کہیں گم ہو گئی ہے تو وہ آپ دوبارہ کیسے لیں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اور کون کون سے ڈاکومنٹس یعنی کون کون سی دستاویزات یا کاغذات جو ہیں ان کی ضرورت پڑے گی، فیس وغیرہ کتنی ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا، وہ مکمل انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور آن لائن دیکھ لینا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تو آج کی اس ٹاپک میں جو وفاق المدارس عربیہ پاکستان سے جنہوں نے اسناد حاصل کی ہیں، اگر ان کی کوئی سند وہ گم ہو جاتی ہے تو وہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، اس کے متعلق ہے طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ضروری ڈاکومنٹس یعنی ضروری دستاویزات جن کی ضرورت پڑے گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے ایک فارم ہوتا ہے جو آپ نے وفاق سے حاصل کرنا ہے، وہ بھی بتاؤں گا کہاں سے آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ فارم کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ سے بھی، وہ فارم آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا، اس کے بعد آپ نے اس کا پرنٹ لے لینا یا آپ کمپیوٹر میں اس کو پر کر کے اس کے بعد آپ اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں۔ پرنٹ لینے کے بعد اس فارم کو آپ نے مکمل کر لینا ہے اور اس کو تصدیق کروا لیں۔ اس کے بعد دوسری چیز کہ آپ نے ایک اپنی تصویر پاسپورٹ سائز وہ اپنے مدرسے سے یا جامعہ سے تصدیق کروا لینی ہے۔ تیسری چیز آپ نے فیس ہوگی جو ان کی ڈپلیکیٹ وہ شیڈول میں آپ کو آگے شیئر کروں گا، وہ فیس آپ نے جو ان کا طریقہ کار ہے وہ آپ نے جمع کروانی ہے، اس کا ثبوت وہ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ چوتھا ڈاکومنٹ تمام مدارس سے آپ نے جہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کری ہے وہاں سے آپ نے لیٹر پیڈ کے اوپر اپنی تصدیق کروانی ہے۔ تصدیق آپ نے تعلیم کے متعلق وہاں سے لیٹر پیڈ کے اوپر کروا لیجیے گا، وہ تصدیق نامے آپ نے ڈاکومنٹس میں لگانے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکومنٹس وہ آپ نے اخبار میں رپورٹ درج کروانی ہے کہ میری سند وہ گم ہو چکی ہے، اور اخبار کو آپ نے ساتھ میں لگانا ہے، یا آپ اخبار کی بجائے FIR کروا سکتے ہیں، یعنی آپ رپورٹ درج کروا سکتے ہیں کسی تھانے میں جو گم شدگی کے حوالے سے، وہ رپورٹ کاپی ملے گی، وہ آپ نے اصل وہ رپورٹ ساتھ لگانی ہے۔ اس کے بعد آخری جو ڈاکومنٹس ہے وہ آپ کی سابقہ اسناد یعنی جو باقی اسناد ہوں گی ان کی نقلیں وہ آپ نے ساتھ لگانی ہے۔ تو یہ چند ڈاکومنٹس تھے جو آپ نے ان کو ترتیب دینا ہے۔ یہ تمام چیزیں فارم پر کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو فیس شیڈول بتا دوں کہ فیس کتنی ہے، کس چیز کی کتنی فیس ہے، اس کے بعد پھر اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈپلیکیٹ یعنی دوسری بار جب آپ اپلائی کر رہے ہوں گے تو اس کے لیے حفظ کا درجہ، اس کی اگر سند گم ہو گئی ہے تو اس کے لیے 400 روپے فیس ہوگی، اگر متوسطہ کی سند گم ہو گئی تو اس کے لیے بھی 400، عامہ کی سند گم ہو گئی تو اس کی بھی 400 روپے فیس ہوگی، اور خاصہ کی بھی 650 روپے، اور اگر عالیہ کی گم ہو گئی اس کی بھی 650 روپے، اگر عالمیہ کی گم ہو گئی تو 900 روپے فیس ڈپلیکیٹ کی لگے گی۔ اس کے علاوہ دراسات دینیہ اگر ان کی اسناد وغیرہ آپ لینا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے 400 روپے فیس ہے، اگر تجوید کی جو اسناد ہے اس کی بھی 400 روپے فیس ہے، تجوید علماء اس کی 650 روپے یعنی 650 روپے، اگر رجسٹریشن کارڈ گم ہو گیا ہے تو اس کی 400 روپے فیس ہے۔ ڈپلیکیٹ حاصل کرنے کی فیس کا شیڈول ہے، جو آپ ڈپلیکیٹ اسناد وغیرہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کی یہ فیس ہے۔ ان میں سے جو بھی چیز آپ کی گم ہو گئی ہے اس کی فیس آپ نے بینک میں جمع کروا دینی ہے۔ اب بینک MCB بینک میں آپ جمع کروا سکتے ہیں، میزان بینک میں، الائیڈ بینک میں، یونائیٹڈ اور نیشنل بینک میں، ان کے اکاؤنٹ نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں، برانچ کوڈ، یہ تمام تفصیل آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آپ نے ان بینک اکاؤنٹ میں جا کر اپنی جتنی فیس ہوگی وہ آپ نے جمع کروا کے وہ آپ
आपको एक रिसेप्ट यानी जो जमा शुदा रिसेप्ट होगी वो आपको वापस मिलेगी, वो आपने संभाल के रखनी है, यानी रसीद जो होगी वो आपने जो है डॉक्यूमेंट्स में साथ भेजनी है। तो ये फीस जो है ये शेड्यूल है और तरीका मैंने आपको जमा करवाने का बता दिया। अगर मजीद कोई इसमें कोई दुश्वारी आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं आपको फॉर्म के मुतालिक बता देता हूँ कि ये आपने कहाँ से हासिल करना है और इसको पूरा कैसे करना है। तो ये फॉर्म जो है फॉर्म नंबर 3 ये आप वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान की वेबसाइट से भी हासिल कर सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप जा सकते हैं। तो इस फॉर्म को पूरा करने के लिए आपके पास पासपोर्ट साइज तस्वीर होगी, वो आपने तस्दीक करवा के यहाँ पर लगा देनी है, जो आपकी डॉक्यूमेंट्स वाली होगी। तो यहाँ पर आपने एक तस्वीर जो है वो लगा देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने रकम तस्जील यानी रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपकी सनद के ऊपर लिखा होगा इसी नाम से रकम तस्जील वो आपने लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपने दराजात लिखने हैं जो जो आपने वफाकुल मदारिस अरबिया से जो है पास की हैं या जिनमें आपने शिरकत की वो लिखने हैं। और उसके बाद यहाँ पर अपने मदरसे का नाम जो है वो लिखना है और साथ में उसका एड्रेस मुकम्मल पता जो है वो भी लिख दीजिए। यहाँ पर रोल नंबर लिखिए और यहाँ पर जिस साल में वो आपने उसमें शिरकत की या पास किया वो लिखना है। इसी तरह तरतीब से आप लिख सकते हैं, यानी आपने अगर आमा खासा वगैरह की लेनी है तो उसके लिए आप यहाँ से उनके दर्जे लिखते जाएं, इसी तरह बाकी जो भी हासिल करना चाहें वो लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने ये खानों में टिक लगाना है जो सनद आप हासिल करना चाह रहे हैं, यानी हिफ्ज की करनी है, मुतवस्सिता की करनी है, आमा की करनी है, खासा की करनी है, आलिया की जो भी हासिल करनी है उसमें आपने टिक लगाना है। एक करनी है या ज्यादा करनी है वो आपने देख लेना है, फीस उसी हिसाब से आपने जमा करवानी है। उसमें टिक लगाने के बाद यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, जिसकी सनद होगी उसका नाम जो है यहाँ पर होगा, उसके वालिद का नाम यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर जिला लिखना है। इसके बाद तारीख पैदाइश जो है लिखनी है, यहाँ पर हिस्सों में लिखनी है और यहाँ पर लफ्जों में लिखनी है। इसके बाद यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। अगर आपका बेफाम है तो बेफाम के ऊपर आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा वो आपने लिखना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर जो है वो लाजमी लिख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपने अपने दस्तखत करने हैं उम्मीदवार ने और यहाँ पर अपना अंगूठा जो है उसका निशान लगाना और यहाँ पर तारीख लिख देनी है। अब जो ये वाला खाना है ये आपने अपने मदरसे या जामिया से तस्दीक करवानी है। उसके लिए यहाँ पर मोतमिम के दस्तखत करवाने हैं और यहाँ पर मदरसे की मोहर जो है वो लगानी है और यहाँ पर तारीख लिखवा लेनी है। और ये जो ऑप्शन है ये आपने इसको छोड़ देना है क्योंकि ये सिर्फ वफाक जो है वो इस पर अपनी तस्दीक वगैरह या जो भी करना है उसने खुद करना है। तो ये इतना सा फॉर्म है जिसको आपने पूर कर लेना है। पूर करने के बाद इसको भी आपने खाली छोड़ देना है, इसको भी ऐसे ही रहने देना। तो ये पूर कर लेना है। पूर करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए वो आपने साथ लगाने हैं और इसको आपने वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान के एड्रेस के ऊपर इसको डाक करवा देना है। डाक करवाने के बाद जो है हो सकता है कि वफाक वाले आपको वफाक में अपने दफ्तर में जो है आपको दावत दें, आपको बुला लें तस्दीक करने के लिए, तो फिर आपको वहाँ पर जाना पड़ सकता है। बाज़-औक़ात ऐसे ही जो है तस्दीक अगर अच्छे से होगी, उनको तसल्ली होगी तो फिर वो बाज़-औक़ात नहीं भी बुलाते, आपको जो है वो सनद जारी कर देते हैं। अगर आपके कागजात जो है मुस्तरद हो जाते हैं यानी वो आपको वापस भेज दिए जाते हैं तो फिर आपने एक काम करना है कि उसके ऊपर आपको कुछ बातें जो है वो बता देंगे कि ये चीजें जो है हमें चाहिए, यानी कि ये तस्दीक होगी, ये मसला होगा, वो आपको मसला बता देंगे। फिर वो आपने देख लेना है और उसको आपने हल करके दोबारा जो है जमा करवा देना। दोबारा जमा करवाने के लिए जो है आपके पास 3 माह का जो है टाइम होता है। अगर आप 3 माह के अंदर जो है वो वापस जमा नहीं करवाते दोबारा दफ्तर को तो फिर आपकी ये दरख्वास्त जो है कैंसिल हो जाएगी। यानी इसके बाद फिर आपको दोबारा से प्रोसीजर करना पड़ेगा, यानी दोबारा फीस और मुकम्मल फॉर्म और मुकम्मल डॉक्यूमेंट दोबारा से आपको जो है बनवाने पड़ेंगे।
भेजना पड़ेंगे। इसके लिए चंद हिदायत या कवायद ज़वाबित जो है वो आप ज़हन में रखिए कि आपने दरख्वास्त फॉर्म को मुकम्मल करना है, जो जो चीजें बताई गई, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने साथ इसमें लाजमी लगाने हैं। आपने फॉर्म को मुकम्मल करके जो है भेजना है। अगर आपके फॉर्म में कोई कमी हुई, यानी आपने मुकम्मल ना किया, आपने अच्छे से दस्तखत या अंगूठा वगैरह नहीं लगाया, तो फिर हो सकता है कि आप पर ऑब्जेक्शन लग जाए, यानी एतराज की सूरत, या आपके जो है कागजात मुस्तरद कर दें, ऐसा हो सकता है। लिहाजा आपने अच्छे से दस्तखत करने, अंगूठा मुनासिब तौर पे लगाना है, जिस जगह बताया गया है मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने इसको वफाकुल मदारिस की तरफ रवाना कर देना है। और जो आपने तस्दीकात वगैरह करवानी है वो आपने मुताल्लिका मदारिस या जामियात जहाँ जहाँ से आपने तालीम हासिल की है, उन तमाम मदारिस या जामियात वगैरह जो है उनके असल लेटर पैड पर आपने तस्दीकात जो है वो बनवा लेनी है। यानी तमाम मदारिस के लेटर पैड बने होते हैं, वहां से आपने तस्दीक नामे जो है वो बनवा लेने हैं। उसमें आप अपनी जो है तस्दीक करवाएंगे कि वहां से आपने तालीम हासिल करी। इस तरह जो है जो आपने तालीम जिस जिस मदरसे से हासिल की है वो आपने वहां से अपनी वो तस्दीक करवानी है। यानी आपने आमा किसी एक मदरसे से हासिल की तो आप उसकी तस्दीक करवाएंगे कि वहां से मैंने आमा की है। इसी तरह तमाम तस्दीकात करवाएंगे और उस लेटर पैड पे जो है तस्दीक के साथ साथ जो है वो मदरसे का मुतमिम या मदरसे का नुमाइंदा होगा, वो आपको दस्तखत करके उसके साथ मुहर वगैरह लगा के आपको तस्दीक करके देगा। ये तमाम तस्दीकात आपने जहाँ जहाँ से तालीम हासिल करी है वहाँ से बनवा लेनी है। इसके बाद दूसरी चीज के आपने जिस मदरसे से आखिरी सनद हासिल की है, चाहे वो मदरसा है या जामिया है, वही इस फॉर्म के ऊपर जो आपने फॉर्म जमा करवाना है उस फॉर्म के ऊपर वही तस्दीक करेगा। फॉर्म के ऊपर तस्दीकात मदरसे के लिहाज से करवाना। इसके बाद जो आपने ख्याल रखना है कि आपने जो अखबार में इश्तिहार देना है वो आपने कौमी अखबार में देना। कौमी मतलब जो गवर्नमेंट की हो या जो मुतल्लिका सूबे से जो है शाया होता है, जिस तरह सूबा पंजाब से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से और बलूचिस्तान जो सूबे के अंदर जो शाया होता है उसी में आपने इश्तिहार देना है। इश्तिहार किस तरह देना है, उसका आसान तरीका है कि आपने उस इलाके के अखबारी रिपोर्टर को ढूंढ लेना है, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। जो अखबार फरोख्त करते हैं या अखबार तकसीम करते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं कि यहाँ का अखबारी रिपोर्टर जो है कौन है वगैरह, उसकी मालूमात ले सकते हैं। और फिर आप उस अखबारी रिपोर्टर से जो है राबता कीजिए और उसको कहिए कि मैंने एक अखबार में जो है रिपोर्ट या मतलब एक इश्तिहार दिलवाना है। तो उसको बताइएगा कि आपने नाम, वल्दियत और आपका रिहायशी पता, वो जो शनाख्ती कार्ड के ऊपर दर्ज होगा वो वाला मुस्तकिल वाला, उसके हिसाब से जो है गुमशुदगी के हवाले से इश्तिहार दिलवाना है। आप उसको बताएंगे ना कि वफात की जो है सनद है वो गुम हुई, उसका इश्तिहार दिलवाना है, तो इश्तिहार दे दीजिए। उसके बाद वो जब इश्तिहार छप जाएगा, शाया हो जाएगा, तो वो आपको नुमाइंदा भी बता देगा या आप खुद भी जो है वो अखबार खरीद लेंगे और उस अखबार अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ जब आप ये फॉर्म भेजेंगे तो इसके साथ लगा के लाजमी भेजना है। या फिर आप इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं कि आप किसी थाने में चले जाएं या ई खिदमत सेंटर बने हुए वहाँ पे चले जाएं। वहाँ पर आपने गुमशुदगी के हवाले से वहाँ FIR यानी वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। उनको बताना है कि मेरी ये सनत है, ये गुम हो चुकी है, लिहाजा उसमें भी आपका नाम, बल्दियत वो लिख लेंगे और रिहायशी पता जो है आपने मुस्तकिल जो शनाख्ती कार्ड वाला है वो लिखवाना है, ये ख्याल रखना है। तो ये दर्ज करवा लेंगे। इसके बाद उसकी कुछ फीस भी हो सकती है, वो ले लेंगे और इसके बाद वो आपको उसकी कॉपी या उसकी रसीद यानी वो FIR रिपोर्ट बनाएंगे, वो रिपोर्ट आपको दे देंगे। वो रिपोर्ट आप जो है फॉर्म के साथ लगा सकते हैं। इन दोनों में से जो आपकी मर्जी, चाहे आप अखबार में इश्तिहार दें या फिर आप FIR की कॉपी जो है वो साथ लगाएं, दोनों में से जो भी दें। तो अखबार में इश्तिहार देना चाहें तो इश्तिहार वाले आपसे कुछ पैसे लेंगे, अगर आप FIR देना चाहें तो उसकी कुछ फीस हो सकती है, हो सकता है करीब मुफ्त भी हो सकता है बाज़ इलाकों में। इसके बाद साबका इसनाद की नकूल जो है वो आपने चाहे तस्दीक करवा लें, बेहतर है आपने उनकी नकलें बनवा लेंगी जो बाकी
कि आमा खासा जो नीचे जो होगी, क्या इसके अलावा जो आप सनद ले रहे हैं उसके अलावा बाकी सनद जो होंगी उसकी नकलें आपने बनवा लेनी, वो भी आपने साथ लाजमी लगानी है। और फीस चालान जो है, फीस का सबूत जो है वो जब आप फीस जमा करवाएंगे तो वो कॉपी जो होगी वो आपको देंगे, वो आपने साथ लगानी है। तो ये चंद हिदायत थी या इनके कवायद और ज़वाबित थे कि आपने इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है और इसके बाद अप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह आपका जल्द से जल्द मसला जो है हल हो सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मददगार होगी और पसंद भी आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह घंटी के बटन को ऑल के ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो, नई अपडेट जारी करूंगा, नई मालूमात शेयर करूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप वो फौरन उससे जो है इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इसी तरह मजीद आप वफाक के मालूमात के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिए। तो मिलेंगे इसी तरह किसी मजीद नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।